Good morning, my friends. Today we are going to study nervous tissue. No doubt, nervous tissue is an important tissue, but let's understand that in which chapter we are studying for class 9 and for class 11. For class 9, if you will study chapter tissue, there are two types of tissues mentioned in the chapter, plant tissue and animal tissue. In plant tissue, I taught, that means my videos are available regarding meristematic tissue, regarding simple permanent tissue, and regarding complex permanent tissue. So slowly, after completing the plant tissue, we are going to study the animal tissue. In animal tissue, four types of tissues are there mainly, and out of those four, I am going to make the one video, that is nervous tissue. So let's recall your previous knowledge regarding the animal tissues. In separate video, I gave you the information regarding all three types of tissue. What is? First is epithelial tissue. Second is connective tissue. Third is muscular tissue. And fourth is nervous tissue. Epithelial tissue, I explained. Epithelial tissues are the tissues present in outer skin. Connective tissues are the tissues like blood, limb, tendon, ligament, bone, cartilage. Muscular tissues are of three types, that is striated, unstriated, and cardiac. Now it is the time to complete the nervous tissue, so I am going to explain the nervous tissue. Now, as you know, I wrote the heading as a nervous tissue. Actually, nervous tissue, that means tissue of neuron. Yeah, tissues made of neuron. You are in class 9 or 11, it doesn't matter, but I think a class 9 student also heard the name neuron in their previous classes. Neurons are very important cell present in our body or in the body of almost all animals, where these are mainly functioning for control and coordination. That means how each and every body parts are communicating, how they are connected together, in what way they are passing the information from one organ to another. So these are mainly the cells responsible for control and coordination. You know, our neuron is also the collection of our brain is also the collection of neuron, and neurons are scattered. You can say it's a network which can approach each and every cell of our body. So neuron we are going to study first. Nervous tissue is the collection of neuron. Now see how I am drawing the structure of a neuron. In very rough way, you can learn to know how to draw the diagram and what are the importance of different parts. So just to draw this skeleton, that means roughly I have drawn the neuron. Slowly you will see that I am explaining each and every part, and I will drawing the different parts. Let's see here. These all three or three branches you can see. Here each branch is later divided in such a way. I have drawn only two, but remaining all where you can draw. So this part is actually called a dendron. Dendron. This whole part is called a dendron. Okay, this whole part. Now the dendron have this kind of depression. This depression is called postsynaptic depression. Postsynaptic depression. Okay, it may be invisible due to this
capacity of my camera. So this is post-synaptic depression. Okay, this area is called cyton, or you can say head of the neuron. This area, this is longer. This longer area from here to here is called axon. Up to here on axon. This three branches or extreme end of the axon is called telodendria. Telodendrion. Yeah, dendron. Plural is dendria. Telodendria. Here it is dendron. Plural is dendrite. So roughly the head part of the neuron has so many branched dendron or dendrites. Inside the dendrite there are liquid or fluid material filled. What fluid is filled inside this dendron and this area of cyton body? These are the cytoplasm of the cell. But the properties of cytoplasm in this area is something different. So here it is known as neuroplasm. Neuroplasm. The cell membrane of the head part only, which is something special in structure, is called neurolemma. Neurolemma. Here one nucleus must be found. So this is the nucleus of the cell, complete neuron, but present in the cyton area. Nucleus is not present in the axon area. So remember, nucleus is present in the cyton area. Now here such structures are found. Now what is this? These are neurofibrils. These are neurofibrils. What is neurofibrils, beta? You must remember, neurofibrils are the non-living fibrous structures or fibrous organelle present inside the cell. You must remember that the neurofibrils are supporting the conduction of messages. That means जैसे न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, तो ये न्यूरोफाइब्रिल्स ही उसको उस मैसेज को कंडक्ट करने में, मैसेज को प्रोपागेट करने में, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में यही हेल्प करता है न्यूरोफाइब्रिल्स। इसके बाद यहाँ जो कुछ आपको और पार्ट मिल जाएंगे जिसको निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। कुछ और हम ब्लैक स्ट्रक्चर्स बना दिए, इसको हम लोग कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल actually what these parts are doing? So nisl granules are actually a modified type of endoplasmic reticulum. How modified? What is the function of endoplasmic reticulum? You studied. Endoplasmic reticulum mainly helps in transportation of material formed inside the nucleus to the cytoplasmic area or sometime outside the cell also. Endoplasmic reticulum are also helpful in detoxification. Endoplasmic reticulum sometimes produces lipid and sometimes produces carbohydrates or starch. So lipid synthesis is done by smooth endoplasmic reticulum and protein synthesis is done by rough endoplasmic reticulum. So Nissel's granules are present here in the cyton part of the neuron. It helps just like the endoplasmic reticulum. Here also some structures are present, that is mitochondria. Mitochondria are present. You already know what is the function of mitochondria. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell, and powerhouse of the cell means
they are able to break down the foods and to release energy. So at least you should remember in Cyton part what different things I taught. 2, 3, 4 and 5. These 5 parts are there. Once again, Nissel's granules are there, mitochondria are there, neuroplasm is there, neurolimma is there, and neurofibrils are there. These all are the important part of the cytone area. Now, you must remember that the neuroplasm is present in both cytone प्लस डेंडरॉन. दैट मीन्स याद रखिएगा कि न्यूरोप्लाज्म जो है, जो फ्लूइड है, हमने यहाँ भी ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट लगाया है, मतलब न्यूरोप्लाज्म दोनों जगहों पर मिलेगा, साइटोन में भी मिलेगा और डेंडरॉन में भी मिलेगा. ठीक है. अच्छा, न्यूरो, अब आइए एक्सॉन की तरफ आते हैं. ये जो लंबा सा टेल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसका हेड यहाँ है, तो टेल ये होगा, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन. एक्सॉन के अंदर भी फ्लूइड रहेगा. यह है साइटोप्लाज्म ही, लेकिन चूंकि इसका थोड़ा फंक्शनल डिफरेंस आता है, इसलिए इस जगह पर इसका नाम हम लोग रख देते हैं एक्सोप्लाज्म. आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के 2 फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं. एक न्यूरोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ साइटोन होगा, एक्सोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन होगा. एक्सोप्लाज्म में ये जो आपका न्यूरोफाइब्रिल्स है ना बेटा, ये न्यूरोफाइब्रिल्स इसमें भी मिलेगा. हमेशा याद रखना है, न्यूरोफाइब्रिल्स ऑल्सो अवेलेबल है इसमें. न्यूरोफाइब्रिल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द एक्सोनल एरिया. अच्छा, एक्सॉन एरिया के ऊपर आप यहाँ पे एक लेयर की कल्पना कर सकते हैं. यू कैन जस्ट इमेजिन अ लेयर विच इज मेड अप ऑफ माइलिन, एंड दिस माइलिन्स मे और मे नॉट बी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो लेयर हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जिसको हम माइलिन लेयर कह रहे हैं, MYELIN, तो ये माइलिन सीट जो है वह हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है. हमने यहाँ पे ऑप्शनल लिख दिया है. Optional means it may be present or not be present. If it is present, it is called myelinated neuron. If it is not present, it is called non-myelinated neurons. इसके ऊपर यहाँ पे कुछ सेल्स आपको इस ढंग के मिल जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर न्यूरॉन के ऊपर. ये सेल को हम लोग कहते हैं स्वान सेल, SCHWANN, स्वान सेल्स. तो स्वान सेल्स भी जो है बेटा ये ऑप्शनल है. दैट मीन्स इसमें ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये स्वान सेल और माइलिन सीट जब प्रेजेंट होता है तो न्यूरॉन के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. इसलिए अगर ये मिले तो उस जगह पर काम जल्दी होगा, मैसेजेस जल्दी प्रोपागेट होंगे, और जहां नहीं मिलेगा वहां मैसेजेस प्रोपागेट नहीं होंगे. इसके बाद देखिए, ये जो तीनों ब्रांच आपको लास्ट में दिख रहा है, इसका नाम है बेटा टीलोडेंड्रिया. टीलोडेंड्रिया, कुछ लोग इंग्लिश में इसको समझने के लिए एक्सॉन टर्मिनल भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक्सॉन का ये इंडिंग पार्ट है, तो एक्सॉन टर्मिनल भी इसको हम लोग कर ही सकते हैं, है ना. तो टीलोडेंड्रिया, इसका जो इंड वाला पार्ट है ना बेटा, वो इस तरह से थोड़ा गोल होता है, और ये जो गोलाई का स्पेसिफिक पार्ट है, इसको हम लोग कह सकते हैं सिनेप्टिक टर्मिनल. सिनेप्टिक टर्मिनल, और इसी का नाम हम लोग दे सकते हैं बाउटन, BOUTON, बाउटन. इसी चीज को हम लोग बॉटन भी बोल सकते हैं. अच्छा, इसमें अब देखिए, ये यहाँ नॉट्स ऑफ ये 2 जो आपका स्वान सेल हमने दिखाया, इस बीच में यहाँ पर गैप हो जा रहा है. इन 2 स्वान सेल के बीच में यहाँ पे गैप हो जा रहा है. जो गैप है ना, उसको हम लोग नोड्स के नाम से जानेंगे, और इसकी खोज रेनवियर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसका नाम नोड्स ऑफ रेनवियर रख दिया गया. ठीक है.
एक्सोप्लाज्म हमने बता दिया। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर का जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन को हम कहेंगे एक्सोलीमा। अब देखिए एक्सॉन में हमने आपको कितने पॉइंट्स को बताया, हम इस बार ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप फाइंड आउट कर सके। देखिए हमने ब्लैक कलर से 1 2 3 4 5 लिखा है, ये आपके साइटोन का एरिया है। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो एक्सॉन का एरिया है। जैसे देखिए सबसे पहले हमने आपको एक्सोलीमा मतलब जो मेम्ब्रेन है इसका बाउंड्री वो बताया, उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, वो एक्सोप्लाज्म कहा। हमने ये भी कहा कि इसमें भी न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने ये कहा कि ऊपर में माइलिन शीथ होते हैं, माइलिन शीथ होते हैं, इस पे स्वान सेल्स भी मिलेगा। ये दोनों मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम टिपिकली पढ़ा रहे हैं। उसके बाद नोट्स ऑफ रेनवियर मिलेगा। इसके टर्मिनल पार्ट में यहाँ आ जाइए, ये हमने टीलोडेंड्रॉन बताया। टीलोडेंड्रॉन, अच्छा टीलोडेंड्रिया हम यहाँ पर भी लिख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टीलोडेंड्रिया हम एक ही जगह लिखते हैं। ये हो गया टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया के लास्ट वाला जो पार्ट है इसको हमने कहा सिनेप्टिक टर्मिनल या बॉटम। इस तरह से काफी एरियाज हमने इसमें आपको न्यूरॉन का बताया है। अब देखिए इसके सभी का जो काम है वो क्या काम है वो सुनिए। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको समझना चाहिए वो समझना चाहिए इसको, ये जो हमने ट्रायंगल में बनाया डेंड्रॉन। एक्चुअली डेंड्रॉन जो होता है ना उसको हम लोग काम के हिसाब से इसको हम लोग कह सकते हैं सेंस रिसेप्टर। ये क्या है कि न्यूरॉन सेंस को ले जाएगा, पास करेगा, लेकिन रिसीव कहां से करेगा? रिसीव ऑलवेज यहां से करेगा, डेंड्रॉन से। डेंड्रॉन से रिसीव करने के बाद इसका पाथ क्या होगा वो सोचिए। यहां से हम इसको अंदर लाए, यहां से ये साइटोन से होते हुए एक्सॉन की तरफ जाएगा, एक्सॉन से होते हुए टीलोडेंड्रिया से, फिर ये पॉइंट जो इसका बॉटम है, बॉटम से होते हुए ये निकल जाएगा। तो अब कहने का मतलब है कि मैसेज किस रास्ते से कहां पूरा इसमें पास किया उसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं पाथ ऑफ। शायद यहाँ दिख रहा हो आप लोगों को, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो पाथ ऑफ प्रोपागेशन मतलब मैसेज जो है वह कैसे प्रोपागेट करता है। तो सबसे पहले ये जाएगा डेंड्रॉन में, मैसेज डेंड्रॉन से अंदर आएगा, डेंड्रॉन से वो साइटोन के पास जाएगा सेकंड नंबर पे, उसके बाद साइटोन से वो एक्सॉन के पास जाएगा थर्ड नंबर पे, एक्सॉन के बाद से ये टीलोडेंड्रॉन के पास या टीलोडेंड्रिया के पास जाएगा 4 नंबर पे, उसके बाद ये टीलोडेंड्रिया से बाउल्टन के पास पहुंच जाएगा 5 नंबर पे। बस बाउल्टन के बाद ये निकल जाएगा, मतलब एक न्यूरॉन से मैसेज जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये पाथ ऑफ द मैसेजेस का बिगिनिंग होता है डेंड्रॉन से, जबकि एंडिंग होता है बॉटम में। इसको भी ग्रीन से बना देते हैं, ये बॉटम से एंडिंग होता है। तो ये पाथ ऑफ मैसेजिंग है। और दूसरे पार्ट में देख लीजिए, फिर से एक बार 1 बाय 1 करके हम आपको बता दें, फिर ये टॉपिक ओवर हो जाएगा और ज्यादा बड़ा तो टॉपिक है नहीं। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल डेंड्रॉन इज रिसीविंग द मैसेजेस, पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन इज द डिप्रेशन, ये एक गड्ढे की तरह का स्ट्रक्चर है जो डेंड्राइट में है, यहीं से मैसेज आता है। निशल ग्रैन्यूल इज द मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, mitochondria is similar as you have studied, it creates the energy, cyton is this area of the head, neuroplasm is the fluid or the cytoplasm inside the cyton, neurofibrils are the special structure which acts as the wire to propagate the messages. Now in axon is the longest cylindrical part which terminates into many branches. Those branches are called telodendria. The axon must contain the cytoplasm, that is specially called exoplasm, and the membrane, cell membrane of this area is specially called exolemma. Then
Apart from this, Schwann cells are present. Myelin sheath may or may not present. Schwann cell may or may not present. At the end, this is branched into telodendria. Telodendria is terminated into the bottom, and bottom is again connected to the next neuron if it will have to form a complete network. So the bottom of one neuron is connected to the dendrite of the next neuron. इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बन जाता है. न्यूरॉन टिश्यू का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा. न्यूरॉन का ऑकरेंस और फंक्शन पर ध्यान देना चाहिए. न्यूरॉन टिश्यू हमारे बॉडी के, हमारे ही नहीं, जितने एनिमल हैं सभी एनिमल के शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचा हुआ रहता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए. लेकिन देखिए, जो शुरुआती दौर में एनिमल बने थे इवोल्यूशन के दौरान, सभी एनिमल में ये न्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर नहीं था. अब आप कहेंगे कि न्यूरॉन सर जो इनिशियल इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिज्म थे जैसे मोनरा, साइनोबैक्टीरिया, क्लेमाइडिया वगैरह, पीपीएलओ वगैरह, तो उसमें इस तरह के न्यूरॉन नहीं थे क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे. प्रोटिस्टा में आ जाइए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जो आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो उसमें डायनोफ्लैगेट, डेस्मिड्स, क्रेसोफाइट्स, ये सब वर्ड जो आप पढ़ते हो प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं. प्रोटिस्टा में भी इस तरह के न्यूरॉन नहीं होंगे. एक्चुअली जब आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मोनरा और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब उनमें सेल, अकेला सेल ही सब काम करने को तैयार है. लेकिन बाकी जो है, आप प्रोटिस्टा के बाद फंगी में आइए, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बनता चला गया ना, वैसे वैसे सेल्स ने अपने आप को, अपना लोड कम करने के लिए ऑर्गन या टिश्यूज बनाना शुरू कर दिया. तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो आप जो एनिमलिया के 11 फाइलम्स को पढ़िएगा तो उसमें आपको पोरीफेरा, शिलिंटरेटा, ये दोनों में सेलुलर लेवल ही मिलता है. तो धीरे धीरे जब मल्टी सेलुलर बनते चले गए तो ये न्यूरॉन से नर्व टिश्यू बनने लग गया. तो अगर ऑकरेंस पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स में और हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं उन सभी एनिमल में ये मिलता है. अच्छा, प्लांट के केस में तो बेटा प्लांट में न्यूरॉन नहीं होता है ना. प्लांट में अगर न्यूरॉन होता तो हम लोगों की तरह प्लांट बिहेव करता ना. अगर हम लोगों को सुई चुभाते हैं, कोई भी मजाक से या सीरियसली अगर कोई सुई चुभो देता है तो हम लोग वो हल्ला करने लगते हैं. अगर यही चीज प्लांट में आप पेन से कांटी ठोक दीजिए तो प्लांट चिल्लाएगा नहीं, क्योंकि उसको दर्द नहीं हो रहा. दर्द सिर्फ एनिमल्स को होता है, वो भी हायर एनिमल्स को. जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उन लोगों को इतना फीलिंग नहीं होता है. तो उन लोगों में ये सब टिश्यू की बात ही नहीं. आप हायर इन्वर्टिब्रेट, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स भी कुछ आ जाएगा, हायर इन्वर्टिब्रेट्स भी हो जाएगा, उसमें ये न्यूरॉन होता है. तो ऑकरेंस आपका क्लियर हो गया. ये हम लोगों के शरीर में साथ ही साथ और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके शरीर में जो मिलेगा, ऑकरेंस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया. अब फंक्शन पर बात करें तो फंक्शन एक लाइन में क्लियर है भाई कि इसका यह एक नेटवर्क की तरह अवेलेबल होता है पूरे बॉडी में, और इसका काम होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना. कंट्रोल करना मतलब कहीं भी अगर जरूरत है तो मिल के भी काम कर सकता है, कभी तेजी से काम कर रहा है तो उसको स्लो कर सकता है. कंट्रोल मतलब क्या, उसको फास्ट कराना, किसी काम को स्लो कराना, किसी को रोक देना, किसी को बिगिन करना, है ना, ये कंट्रोल हुआ. कोऑर्डिनेशन मतलब ऑलवेज एक टीम की तरह काम करना. तो कोऑर्डिनेट तो होता है, हम लोग का शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी एक टीम की तरह काम करते हैं. कोई भी एक्शन करना हो सभी टीम की तरह काम करते हैं. तो ये हम लोगों का नर्वस टिश्यू हुआ. अगले वीडियो में फिर दूसरे टिश्यू पर चलता है. थैंक यू.